जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जाने वाले हैं कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट सब क्या है, जीडीएससी लीड आप कैसे बन सकते हैं एंड जीडीएससी लीड बनने के क्या क्या फायदे हैं एंड जीडीएससी लीड एप्लीकेशन से रिलेटेड हर एक वो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर ऋषभ गुप्ता सर, जो कि अभी जीडीएससी आईटी आरजीपीवी के लीड है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं ऋषभ सर से उनके बारे में। Hello everyone, I am Rishabh Gupta, GDSC lead of UIT RGPV Bhopal, and I am also Microsoft Learning Student Ambassador at beta level. I also founded freakydiodes.com, and apart from that, I am a fourth year undergraduate student of Electronics and Communication Engineering at UIT RGPV. So that's all I think from my side. So now that we have learned about Rishabh sir, let's learn what exactly GDSC is. Okay. So basically, GDSC. Let us start from basic. GDSC stands for Google Developer Student Clubs. So basically, Google Developer Students Clubs are the technical society or clubs at the universities of different countries, or you can say around the globe. So different colleges or different universities are the part of Google Developer Student Club. So student can set up the club at their university, and they can build projects, create events, or host hackathons, workshops, so that other students can also learn. They can set up a community so that everyone can grow by supporting each other. So basically, GDSC is all about community work and peer-to-peer learning. Yeah, so some aspects that we can consider that are peer-to-peer learning, the community bonding that we get through the GDSC program, and basically being able to lead such a huge program that is supported by Google is something I think is a big achievement, I guess. So moving further, let us know what is how we can go for being a lead of Google Student Developer Club. How is the application process and all the workflow that are done there. Okay. So let me start. So basically, the application process for GDSC leads start usually around March for India, and for some other reason it starts maybe late, because in India there are various colleges or a huge amount of colleges. So from March it start, and for the next year GDSC leads, the application has already started, and it will end on April 15th. Okay, so if you want to become a GDSC lead, then you need to fill up a form. In that form, there are various things will be asked, such as your personal details, your social media profiles, your developer profiles, you can say quick lab profiles or GitHub profiles, and then you need to answer at least three questions. So there are three questions you have to answer, such as why do you want to join GDSC, how will you run the GDSC community, and how are the what are the technologies you are interested, or your favorite technologies, and what are the projects. These kind of things you have to write on the questions. So the answer will be like a essay answers, like the word limit is 2000. So as much as you can write, it will give a plus point to you. And then you need to create a YouTube video, at least 90 seconds YouTube video, on that video you need to tell them how do you run the club, and why do you exactly want to GDSC to be set up in your university. So for that you can follow different videos on YouTube. You can see my video on YouTube, it is there in YouTube, or you can see other leads videos also. So yeah, these are all the things you need to do for applying GDSC lead. सो अभी तक हमने जान लिया कि जीडीएससी क्या है एंड जीडीएससी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप जानते हैं कि जीडीएससी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सर लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ जीडीएससी लीड? ओके, सो जीडीएससी लीड्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल लीड अ क्लब, जो क्लब गूगल से सपोर्टेड है. लाइक गूगल इज सपोर्टिंग द क्लब, दे आर हेल्पिंग यू टू इनिशिएट द क्लब और टेक द इनिशिएटिव. सो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप एक ऐसे क्लब को लीड करोगे जो गूगल खुद जिसको स्पॉन्सर कर रहा है और यू कैन से सपोर्ट कर रहा है. देन आप की लीडरशिप स्किल्स बढ़ती हैं. You will lead a team of various members, you can say 5 or 10 members. Then फिर आप उसके ऊपर डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हो, डिफरेंट इवेंट्स करते हो, हैकाथॉन्स करते हो.
जिससे आपकी जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, जैसे सपोज आप एक वेब डेवलपर हो या एंड्रॉइड डेवलपर हो, तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो इंक्रीज होगी, आप वर्कशॉप्स दोगे, इवेंट कराओगे, देन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक लोकल पार्टनर्स होते हैं, कोई शॉप हो गई या कोई भी लोकलाइट में होटल रेस्टोरेंट या कुछ भी हो गया, उनको कुछ नॉर्मल से इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज जो है, तो आप उनको सॉल्व करने के लिए अगर कुछ बनाते हो तो गूगल आपको सपोर्ट करता है कि आप वो प्रोजेक्ट बनाए, देन उस प्रोजेक्ट को वो आगे लेके जाएंगे, उस प्रोजेक्ट को थोड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोजेक्ट को शोकेस करेंगे। देन इसके बाद एक नेटवर्क रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसी कम्युनिटी में जुड़ रहे हो जो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, लाइक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो एक्सपर्ट्स हैं गूगल के, जो गूगल में काम कर रहे हैं, एचडी हैं, जो गूगल के कम्युनिटी पार्टनर्स हैं और कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, आप सब उससे कनेक्टेड रहेंगे। आपको कोई भी अगर छोटा सा भी इशू होता है आप उनसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप इजीली उनसे मेंटरशिप वगैरह ले सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। सो नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, आप फिर अकेले नहीं सीखते कोई भी चीज़, आपके जैसे कई सारे डेवलपर्स होते हैं जो वो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। सो जब आप कोई चीज़ ग्रुप में करते हो, कम्युनिटी में करते हो, तो उसका आउटकम बेटर आता है। देन इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ स्वैग्स वगैरह भी रहती हैं, जो कि हालांकि एकदम लास्ट में चीज़ है, इसके लिए कभी भी कोई मोटिवेशन नहीं रहना चाहिए, ये केवल आपको एक अप्रिशिएशन के लिए दी जाती है। सो स्वैग्स वगैरह मिलती हैं, लाइक आई गेट सम टी शर्ट्स, हेडफोन और GDSC मग। सो एक्चुअली में ये चीज़ें काफ़ी सारी अच्छी लगती हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं GDSC से जो आप सीखते हो। आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, आप क्लब को लीड करते हो, आपकी लीडरशिप स्किल ऑब्वियसली सही होती है। सो अगर आप कोई इंट्रोवर्ट पर्सन हो, अगर मैं अपना बोलूँ तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मैंने कभी फर्स्ट सेकंड ईयर में कभी भी कोई क्लब वगैरह लीड नहीं किया है, या मैं चीज़ों को नहीं बोल पाता हूँ पब्लिक में, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैंने जब क्लब का इनिशिएटिव लिया और होपफुली मैं GDSC लीड बना, तो मुझे याद है कई सारे जब मैंने पहली बार ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह की, तो कुछ वर्कशॉप उतनी अच्छी नहीं हुई देन, लेकिन फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस वगैरह मुझे मिला, सो बाकी आने वाली चीज़ें स्मूथली गई। सो बेसिकली आप बेटर डेवलपर भी बनते हैं, आप बेटर पर्सन भी बनते हैं, और आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। सो ये सारे फ़ायदे हैं GDSC के। और ऑब्वियसली आप एक ऐसी कम्युनिटी में जुड़ रहे हो जो ग्लोबल है, आपका नाम गूगल के डेवलपर प्रोफाइल्स में कहीं ना कहीं आपका नाम रहेगा। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही सारे बेनिफिट्स। कम्युनिटी लर्निंग के काफ़ी सारे फायदे जो कि हम हमारी ऑडियंस को काफ़ी लंबे टाइम से कहते हुए आ रहे हैं। या एग्जैक्टली। ओके, सो ये तो था कि लाइक GDSC बेनिफिट्स क्या है। एक चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे भी काफ़ी टाइम पूछी है, हालांकि मुझे उसका आंसर नहीं पता था, कि लाइक जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस तक तो लाइक सबको पता होता है कि आपने एप्लीकेशन फिल करी एंड ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाना है। इसके बाद सो लाइक जब आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर ली थी एंड उसके बाद जैसे आप सक्सेसफुल हो गए, तो उसके बाद आपके GDSC लीड बनने तक के बीच में और क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें शायद ये सिर्फ किसी लीड को ही पता है। ओके, सो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, देन इसके बाद आपको एक मेल रिसीव होता है कि आप फर्दर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट अगर होते हो, तो आपको एक मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू होगा। एंड उसमें एक शेड्यूल करने की लिंक रहती है, आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो, कैलेंडर लिंक रहती है। सो आपके पास स्लॉट्स रहते हैं वेरियस डे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है आप किस दिन के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहते हो। देन उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने आंसर्स फिल करे होंगे या आपने जो वीडियो में बोला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लाइक आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट अगर किसी टेक्नोलॉजी पे बनाया तो क्यों बनाया, या उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए। देन आपने अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने का या लीड करने का क्लब्स वगैरह को, तो ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू में पूछते हैं। सो बेसिकली इंटरव्यू अप्रॉक्स 30 मिनट्स चलता है। सो या फिर इसके बाद मुझे अराउंड 15 डेज बाद इंटरव्यू के मुझे मेल आ गया था दैट कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ GDSC लीड के लिए। और फिर उसके 2 वीक बाद अपनी ऑनबोर्डिंग कॉल हुई, जिसमें ऑल इंडिया के जितने लीड्स थे, 350 प्लस लीड्स थे ऑल ओवर इंडिया से, जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, तो उन सभी के साथ एक नेटवर्किंग सेशन हुआ, एक पावरफुल मीट हुई, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली, काफ़ी सारे लोगों से मिले हम लोग। ऑब्वियसली वर्चुअल था, लेकिन एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने उसमें। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो सर लाइक ये तो था कि आप अब GDSC लीड बन गए। GDSC लीड बनने के बाद जहाँ से लाइक जैसे आपने अभी पूरी टीम फॉर्म करी है, तो ये टीम फॉर्म करने का क्या प्रोसेस था, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी एंड लाइक क्या रहा था पूरा एग्जैक्ट प्रोसीजर?
ओके, सो लाइक अब मेरे कॉलेज में जीडीएससी पहले कभी नहीं था। सो मेरे को जीडीएससी सेटअप करना था, पूरा क्लब, एक न्यू क्लब सेटअप करना था। तो जब भी आप कॉलेज में कोई क्लब वगैरह सेटअप करते हो तो आपको परमिशंस लगती हैं आपको क्लब बनाने की, उसको रजिस्टर करना पड़ता है कॉलेज में। सो सेम मेरे केस में था, मैं घर पे था लेकिन परमिशंस वगैरह सब लेनी थी। तो मैंने कुछ लोगों को रीच आउट किया, कुछ फैकल्टीज़ को रीच आउट किया। सो शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे तो उनने रिवर्ट बैक नहीं किया। देन फिर मैंने डॉक्टर संजय शर्मा सर से बात की। एक्चुअली वो हमारे फैकल्टी ऑलरेडी मुझे पढ़ा चुके हैं, तो उन्होंने पहले भी कई सारी चीज़ों में हेल्प की है, तो मैंने उनको रीच आउट किया। देन उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे अपन को क्लब सेटअप करना है। तो हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह लिखी, एक प्रपोजल बनाया पूरे क्लब सेटअप करने का। तो ये सारी चीज़ों में मैं अकेले ही था उस समय, क्योंकि जीडीएससी लीड अकेले ही था। तो ये सारी चीज़ें करी, प्रपोजल बनाया, देन उस प्रपोजल को डायरेक्टर से फॉरवर्ड कराया, तब जाके वो क्लब सेटअप हुआ। क्लब सेटअप हुआ तो आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है क्लब सेटअप करते टाइम, कि आपको एक फैकल्टी एडवाइजर लेना पड़ता है, जो आपको कॉलेज से कोई भी इशू वगैरह हो तो वो आपको उस चीज़ को हैंडल कर सके। सो फैकल्टी एडवाइजर के लिए मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर संजय शर्मा सर, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। सो वो फैकल्टी एडवाइजर हैं जीडीएससी के। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप थी जीडीएससी की कोर टीम फॉर्म करना। सो कोर टीम बनाना एक डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि बेसिकली अब आप रेंडमली किसी को नहीं ले सकते हो। सो उसके लिए हमने रिक्रूटमेंट फॉर्म वगैरह स्टार्ट किए, रिक्रूटमेंट फॉर्म बनाए, अराउंड 100 रजिस्ट्रेशन आए, उस पर 100 एप्लीकेंट्स आए। देन उसमें से शॉर्ट लिस्ट करे फर्स्ट राउंड में। देन उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कुछ लोग बचे, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद फिर ईच कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना, वो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस था। उसमें कुछ लोगों ने मेरी मदद की और कुछ इंटरव्यू मैंने पर्सनली लिए। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा, ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ लग गए क्लब सेटअप करने में और कोर्टिंग फॉर्म करने में। सो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, बट या मैनेज हो गया कैसे भी। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी कोर टीम में, क्योंकि आप कैसे जज करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि 2-3 कैंडिडेट्स हैं और दोनों में 19-20 का फ़र्क है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चॉइस हो जाती है आपके लिए। सो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बट होपफुली सारी चीज़ें हो गई। एंड फिर कोर टीम फॉर्म की हमने। सो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी जब फर्स्ट टाइम आप जीडीएससी सेटअप करो। इफ़ आपके कॉलेज में पहले से जीडीएससी सेटअप है तो फिर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है। सो लाइक जैसे अब अपने कॉलेज में पहले से जीडीएससी सेटअप है, तो नेक्स्ट टाइम अब जो भी लीड बनेंगे उनको उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। या एग्जैक्टली। सो सर, जैसा कि लाइक अपनी काफ़ी पहले डिस्कशन हुई थी आपके पूरे प्रोसीजर की, आपने कई बार बताया था कि लाइक आपकी एकदम एंड मोमेंट पे जाके सारी चीज़ें हुई हैं। तो एक बार आप हमारी ऑडियंस को भी बता सकते हैं लाइक कि आप किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें एंड मोमेंट पे होती हुई चली है, कि लाइक जैसे आपने वो ठीक है, पहले तो सेकंड ईयर में अप्लाई किया था एंड देन वो छूट गया था एंड पूरी चीज़ें। सो बेसिकली हुआ ऐसा कि जीडीएससी के बारे में मुझे पता चला था सेकंड ईयर में, ठीक है। तो उस समय जब मुझे पता चला तो एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओवर हो चुके थे। अराउंड अप्रैल में शायद एप्लीकेशंस ओवर हुए थे, मुझे मई में पता चला। उस समय एमएलएसए में मैं आया था, एमएलएसए में नया नया, तो एमएलएसए की चीज़ों में मैं घुसा हुआ था, तो मुझे पता नहीं चला। सो फिर मैंने उसको लीव कर दिया। देन इसके बाद उस समय जब सेकंड ईयर में मैंने उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, तो उसमें था कि आप को सेकंड ईयर स्टूडेंट होना चाहिए मिनिमम। मतलब या तो आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। तो अगर थर्ड ईयर होते हो या फोर्थ ईयर होते हो तो आप एज अ लीड आप नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लीड्स के एप्लीकेशंस आए तो मैंने जूनियर्स को भेज दिए, सबको भेज दिए कि अप्लाई कर दो। बट एट द लास्ट मोमेंट मैं ऐसे ही इंटरनेट सर्फ कर रहा था, तो मैंने अराउंड लास्ट डेट थी 20 अप्रैल, बाद में एक्सटेंड हो गई, बट 20 अप्रैल को मैं अराउंड 8-9 बजे मैं देख रहा था, तो उसमें एक जगह पॉइंट चेंज हुआ कि आपका 1 ईयर लेफ्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उस समय थर्ड ईयर चल रहा था। सो मैंने वो चीज़ देखी, तो मैंने कहा कि कर देते हैं ट्राई। अब 9 बज रहे थे, 12 बजे एप्लीकेशन क्लोज होने थे, ठीक है। तो अब अराउंड 1000-1500 वर्ड के मैंने 3 आंसर्स लिखे। 1.5 घंटे लगे मुझे वो आंसर्स को लिखने में, उसको रेक्टिफाई करने में। देन इसके बाद अराउंड 11 बज गए थे ऑलमोस्ट, खाना वाना खाया मैंने फिर 11 बजे। तो उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। सो पहले 2 बार में तो वीडियो सही नहीं हुआ, फिर तीसरे बार में वीडियो एक कंटिन्यू वे में गया, एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी, थोड़े से उसमें एडिट्स करे, और मुझे याद है 11:47 हो रहे थे जब मैंने वीडियो सबमिट करा। ओके, हाँ, सो ये सारी प्रोसेस हुई, एकदम क्लोज मतलब डेट पे जाके आपने करा। हाँ एकदम क्लोज डेडलाइन पे।
सो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैंने अप्लाई कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। सो क्लोज डेडलाइन पे किया। अगर मेरी वीडियो देखोगे तो वो वीडियो एकदम ऐसी हड़बड़ी में बनाई गई है। बाकी अगर अदर लीड्स की वीडियो देखोगे तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम लेके वो वीडियो बनाई है। सो ये बहुत ही फनी भी कह सकते हो, स्कैरी भी कह सकते हो। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई। बट या ये हो गया, एंड में सब कुछ ठीक हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ क्या हुई, जब मैंने लीड्स का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, सो मैं लिंक्डइन पे देख रहा था लोगों को मेल आ रहे थे इंटरव्यू के। तो लिंक्डइन पे लोग शेयर कर रहे थे, यूट्यूब पे डाल रहे थे। सो अब मुझे मेल नहीं आया। मई में लोगों को 11 मई से लोगों को मेल आना स्टार्ट हो गए थे, जिनने 20 अप्रैल तक सबमिट किया था एप्लीकेशन। मुझे मेल नहीं आया। उसके बाद जून निकल गया पूरा, मुझे मेल नहीं आया। देन इसके बाद जुलाई में मैं रोज, एक्चुअली इस बीच में मैं रोज हर 2-3 दिन में मेल चेक करता रहता था, सर्च करता था कीवर्ड से कि मे भी कोई मेल आया हो, मिस हो गया हो, स्पैम में चला गया हो। तो अचानक ऐसा 11 जुलाई थी शायद, जब मैंने मेल चेक किया, सो मेरे पास एक मेल पड़ा हुआ था जिसकी डेट डली थी 11 मई, जो उससे पहले मुझे कभी नहीं दिखा। अब ये मे भी कोई ग्लिच होगा या पता नहीं, इनबॉक्स में कहीं खो गया हो। सो अब 11 मई पे मैं मेल खोलता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू शेड्यूल कर दीजिए। एंड इसके नीचे एक टर्म लिखी हुई थी कि इंटरव्यू आपको 3 वीक्स के अंदर करना है। एंड ऑलरेडी 8 वीक्स हो चुके थे, ठीक है। सो फिर भी मैंने उस पे गया कैलेंडर पे, मैंने शेड्यूल कर दिया एंड एक मेल डाल दिया मैंने, जो भी हेल्प डेस्क था उसमें मैंने मेल डाल दिया कि ये चीज़ हुई है। सो होपफुली इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हो गया। देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मेरा नेक्स्ट डे का, 12 जुलाई का। और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ रात को 11:30 बजे, ठीक है। सो रात को 11:30 बजे शेड्यूल हुआ। अब गर्मियाँ चल रही थी ऑलमोस्ट, और अपन यूपी से आते हैं तो लाइट तो आती नहीं है, लाइट चली गई, ठीक है। लाइट मतलब उस दिन पूरे दिन से ही नहीं आ रही थी। सो लैपटॉप ऑलमोस्ट पीक पे था डिस्चार्ज होने के, लाइट चली गई। फिर मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई, उसको रखा, कैमरा ऑन करा, ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट किया। लाइक पूरा पसीने में बैठा हुआ था और इंटरव्यू चला 30 मिनट्स, अराउंड 35 मिनट्स वो इंटरव्यू चला। उन्होंने मेरे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे। देन इंटरव्यू क्लोज हुआ। और ये सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो ऐसा कह लो कि लक था, तो क्लियरली हो गया, इजीली हो गई चीज़ें। सारी चीजें जस्ट डेडलाइन वरना मैं तो होप छोड़ दिया था मैंने कि शायद इस बार नहीं होगा। बड़े खून पसीने की मेहनत करी है सबने। आखिरी में प्यार पसीना था। हाँ। या वो मोमेंट मैं कभी बोल नहीं सकता। ऐसा मोमेंट था वो, जो बैठा हुआ हूँ फोन की फ्लैश लाइट में और इंटरव्यू दे रहा हूँ। जब लाइक उस माहौल में आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको देख रहे होंगे, तब वो क्या सोच रहे होंगे उस सिचुएशन में? अब वो तो जो भी सोचे छोड़ो। उनको समझ में नहीं आया होगा कि चल क्या रहा है। Okay. Okay, so what are your motivations behind applying for GDSC? We have known all the benefits, but what particularly interests you personally to apply for it? Okay, so basically, in my college there are various technical societies, ACM or ECEL, IEEE was also there, and some other societies. But the main thing I see, these societies are not doing the work we are expecting from them. Like they are organizing sessions or workshop in 6 months or in whole year, like 2 or 3 workshops in a year. So I feel there are students are not connected with technology. Like there are a lot of new technologies, a lot of Google developer technologies, or you can say any other technologies, and they are not aware of programs like Microsoft Student Learn Ambassador or Google Developer Student Clubs or international communities like MLH or many more communities, GitHub Campus Expert. So I thought to start a community or become the lead, so that I can set up the community and the student can aware of these communities. Like there are a lot of things apart from college. There are a lot of information, there are a lot of technologies they can work on, there are a lot of people they can network with. So the main motivation behind it, to set up a community where a student can learn something, can build something using the technology. So this is my main motivation, because past 3 years of since I joined the college, there was no technical society which was doing
this kind of work. So I thought to start this. और फिर शुरू हो गया। या देन फिर शुरू हो गया, होपफुली सारी चीज़ें स्मूथली हो गई एंड पहला जीडीएससी चैप्टर सेटअप हो गया अपने कॉलेज में। सो ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज में कि जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें सेटअप होती। Yeah, like being So able to make our own community and that too being a part of it as a Google. So that's something huge, I guess. या सर जैसा आपने बताया कि लाइक आप उस टाइम पसीने में लथपथ होके वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो लाइक वो इंटरव्यू आपका कैसा था? लाइक उस पूरे इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसमें? सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो अच्छा था एक्चुअली। कह सकते हो ये काइंड ऑफ पहला इंटरव्यू था। लाइक इससे पहले भी कुछ इंटरव्यूज थे बट ये इंटरव्यू ऐसा था कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई थी। तो वो इंटरव्यू थोड़ा सा मैं नर्वस था एक्चुअली में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। तो मैंने तो obvious ही इंटरव्यू चीज़ जब है। स्टार्ट किया सो जो सामने जो उनकी तरफ से इंटरव्यू था वो काफ़ी पोलाइट पर्सन था एंड उनने शायद कहीं फॉरेन कंट्री से ज्वाइन किया था बिकॉज इधर 11:30 रात के बज रहे थे और वो शायद 12 PM हो रहा था उनके यहाँ पे। सो उनने पहला क्वेश्चन मेरे से इंट्रोडक्शन वगैरह लिया। सो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया। देन फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्यों चाहते हो कि आपके कॉलेज में जीडीएससी सेटअप हो। सो मेरा सेम रिप्लाई था कि जीडीएससी इससे पहले मेरे कॉलेज में नहीं था एंड इससे पहले कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जो रेगुलर इवेंट्स करे या रेगुलर कुछ ऐसी चीज़ें करे कि बच्चे सीख सके कुछ। जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस नहीं है। लाइक किसी ने बोल दिया ये चीज़ कर लो वो उधर चले जाएंगे, या किसी ने बोल दिया ये कर लो वो उधर चले जाएंगे, या कुछ नहीं तो जो फालतू की सोसाइटीज़ होती हैं उनमें मेंबर बन जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं कॉलेज में। सो ये मैंने उनको बताया कि ऐसी चीज़ें हैं। देन इसके बाद फिर उन्होंने मुझे से पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक कम्युनिटी को लीड करने में, एक टीम लीड करने में। सो मैंने इवेंट्स वगैरह तो काफ़ी ऑर्गेनाइज किए थे। ऑफलाइन इवेंट्स मोस्टली किए थे क्योंकि उस टाइम कोविड नहीं था जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था। सो ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए। सो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बेनिफिट था मुझे। देन इसके बाद टीम वगैरह का उतना नहीं था क्योंकि मैंने कभी टीम लीड नहीं की। थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था मैं, तो पब्लिक स्पीकिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लैक करती थी। बट स्टिल ड्यू टू MLSA मैंने कई सारी वर्कशॉप्स की थी तो थोड़ा सा ये फियर ख़त्म हो गया था अंदर से। देन फिर उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और किसी चीज़ पे अगर मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ, है ना, और प्रोजेक्ट के बिहाइंड का मोटिवेशन। सो ये चीज़ मैंने उनको बताई कि प्रोजेक्ट मैंने क्यों बनाया या क्यों मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उस समय मैं अपनी एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, या कह लो एक वेबसाइट थी हमारी, कुछ ग्रुप्स मेरे कुछ साथ वाले थे उनके साथ मिलकर हमने बनाई थी freakydiets.com। सो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, एक कम्युनिटी टाइप सेटअप कर रहे थे। सो उन सारी चीज़ों को मैंने उनको बताया। देन लास्ट में फिर उनने मेरे से एक क्वेश्चन, उनने बोला कि डू आई हैव एनी क्वेश्चंस। सो मेरे पास कुछ खास नहीं था पूछने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछ लिया था कि इसके बाद का क्या जर्नी रहेगी मेरी, किस टाइप से चीज़ें होंगी, क्या प्रोसेस रहेगी। सो यही सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी। सो या ये ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अराउंड 35 मिनट्स का इंटरव्यू था। लाइक 35 मिनट्स गूगल Yeah. का इंटरव्यू, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस हाँ। रहा आपका। या आई थिंक जीडीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी रही है, मतलब पूरे 1 साल आपने काम किया है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई होगी 1 साल में, काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, तो ऐसा कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें? सो हाँ, ऐसी कई सारी चीज़ें रही हैं। सो लाइक जीडीएससी के बीच में एक मुझे याद आ रहा है एक इवेंट था हमारा 10 डेज ऑफ ओपन सोर्स, जो अक्टूबर फेस्ट चल रहा था। अक्टूबर में हम लोगों ने ये इवेंट किया था 10 डेज का। सो इवेंट के जो फर्स्ट डे था इन्फो सेशन वाला डे, सो उस दिन हमारे टीम के कुछ होनार मेंबर्स ने बोला कि एक प्रैंक करते हैं ऑडियंस के साथ। अपन उसको जो पीपीटी की लैंग्वेज है उसको रशियन कर देंगे एंड देन आई गेस ट्रांसलेटर से उसको प्ले करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने रशियन तो कर दी, लेकिन ऑडियंस जो थी उनको जोक समझ नहीं आया क्योंकि हमने कोई पोल नहीं डाला। हमने पोल में डाला था कि इन विच लैंग्वेज डू यू वांट द सेशन, इंग्लिश, हिंदी और रशियन। ठीक है, सो आई गेस उनको जोक समझ नहीं आया एंड पीपीटी रशियन में चेंज हो गई। मैंने सेशन स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, अब नाउ द पीपीटी इज इन रशियन।
मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ कि इसको चेंज करो, और पता नहीं क्या इशू था, वो चेंज नहीं हुई। अब पीपीटी मैंने बनाई थी तो मुझे पता था क्या लिखा है, मैंने स्टार्ट कर दी रशियन में पढ़ना। तो ये चीज मतलब बहुत ज्यादा फनी थी। कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने शुरू की, जो 3-4 स्लाइड्स थी वो रशियन में थी, पूरी स्लाइड्स मैंने रशियन में कर दी। एंड जो लोग थे वो ऑब्वियसली वो गाली दे रहे होंगे। क्या कर रहा है ये? सो ये काफी फनी चीज हुई थी। और उसी इवेंट में एक बार फनी चीज हुई। हम लोगों ने काफी सारे प्लेटफॉर्म टेस्ट किए, लाइक हमने जूम पे भी इवेंट किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी किया, गूगल मीट पे भी किया। सो टीम के कुछ होनहार लोगों ने बोला कि सर डिस्कॉर्ड पे करते हैं इस बार, डिस्कॉर्ड काफी अच्छा जी, रहता यार, है होनहार इस पे। तो उस डिस्कॉर्ड पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन ज्वाइन। सो मैंने तो कभी किया नहीं था डिस्कॉर्ड पे, अपन ने स्टार्ट कर दिया। अब उसी दिन पता चलता है जब 50 से अब इवेंट में रजिस्ट्रेशन 300-400 हो गए, ठीक है, 150 प्लस 200 प्लस लोग उस पर ज्वाइन होने वाले हैं। 50 के बाद डिस्कॉर्ड पे क्या होता है, आप केवल ऑडियो सुन पाते हो, वीडियो नहीं देख पाते हो, ठीक है। अब ये चीज हुई, ठीक है। तो 50 के बाद, इसके बाद भी थोड़ा बहुत उसी समय हम लोगों ने यूट्यूब लाइव स्टार्ट किया। देन यूट्यूब लाइव पे भी शेयर करी सेम चीज, तो ऑडियंस को वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश की। देन यूट्यूब लाइव पे क्या हुआ, जो बंदा हमारी स्क्रीन शेयर कर रहा था वो उन टॉप 50 लोगों में से हट गया। तो जो यूट्यूब पे जो सेशन चल रहा था उनको केवल ऑडियो आया। सो ये इवेंट मतलब ये समझ लो कि फनी भी था, एम्बेरसमेंट भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग ऐसा नहीं कि केवल कॉलेज के लोग थे, उस इवेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग थे। कोई श्रीलंका से था, कोई ताइवान से था, तो ऐसे लोग उससे जुड़े हुए थे। तो काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस था ये, बट यार मज़ा आया उसमें। एंड लाइक मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ, वो होनहार लोग में अंकुरित डिस्कॉर्ड हम तो नहीं थे। क्योंकि लाइक सारी चीजें हम डिस्कॉर्ड के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे थे and हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ लिमिट रहने वाली है। तो क्या होता है जीडीएससी लीड के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड सर की क्या प्रोसेस रही, सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली। तो अब इस वीडियो को एंड करते हुए हमारा आखिरी सवाल, सर वो क्या चीजें होंगी या कोई पर्सनल टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें जिससे वो अपने लाइक जीडीएससी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ लाइक वो उनको फ्यूचर में हेल्प कर सके। ओके, सो मेरे हिसाब से तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरें तो उसमें जितने भी सोशल मीडिया वगैरह आपसे मांगे जा रहे हैं, आपकी डेवलपर प्रोफाइल मांगी जा रही है, उसको मेंशन करें। देन उसके बाद जो उसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, सो कोशिश करें कि उसको अच्छे से एलेबरेट करें। आप अगर उसमें मोटिवेशन पूछा जा रहा है तो आप अपना मोटिवेशन क्लियरली लिखें। देन उसमें आपके प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट पूछे जा रहे हैं तो उसको लिखें। और इवन आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है या कुछ छोटे प्रोजेक्ट भी हैं तो आप उसको मेंशन करें। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो उस प्रोजेक्ट को भी मेंशन करें। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी आपकी प्रोफाइल पे। देन इसके बाद वीडियो वगैरह जब आप बनाएं तो इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस ना करें। इंट्रोडक्शन में थोड़ा मुश्किल से 15 सेकंड या 20 सेकंड आप लें इंट्रोडक्शन के लिए एट मैक्स। देन इसके बाद आप पूरा जीडीएससी के लिए आप क्यों जाना चाहते हो, जीडीएससी से आपका क्या मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें उस पर फोकस करें। एंड देन इसके अलावा मैं कहूँगा कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो जीडीएससी लीड्स के लिए, सो अगर ये आपका पहला साल है जीडीएससी लीड का या आप फर्स्ट हो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड सबसे जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कोर टीम वाली। तो आपको समझना है कि कोर टीम किन लोगों की ली जाए या कोर टीम कैसे बनाई जाए। सो कोर टीम चुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वाइल सिलेक्टिंग द कोर टीम एक ध्यान रखें कि आपको जितने लोगों की ज़रूरत हो उतने ही लोगों को लें, या ज़्यादा लोगों की मेरे से मिस्टेक्स हुई है कोर टीम सेलेक्ट करने में। सो ये सारी मिस्टेक्स आई होप कि आप लोग ना करें। एंड देन इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं जीडीएससी के अलावा। आप गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स प्रोग्राम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड गूगल डेवलपर ग्रुप्स हैं। एंड फॉर फीमेल्स वुमेन टेक मेकर प्रोग्राम है, वुमेन टेक एम्बेसडर्स। सो आप ये सारी चीज़ों में जा सकते हो। एमएलएच हो गया, एमएलएसए हो गया। सो अ लॉट ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं। और कम्युनिटी लर्निंग बेसिकली बेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स है। आपको चीज़ें बहुत कुछ सीखने मिलती है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आप खुद को एक्सप्लोर कर पाते हो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह प्रोफेशनली आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा आई गेस यही सारी चीज़ें हैं, आप इस पर फोकस करें।
एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए GDSC के लिए। एंड कोई भी अगर क्वेरी या कुछ भी लगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। या सर के So- सारे सोशल्स एंड सारे डिस्क्रिप्शन जितने भी सोशल लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको कुछ भी लगे कि आपको सर की पर्सनल मेंटरिंग की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन पर नजर डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ गेस्ट। आई थिंक आज का पूरा सेशन जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।